Hi everyone, welcome back. Today in this video we would learn the detailed concept of ANOVA, that what is ANOVA and how one-way ANOVA is different from two-way ANOVA, and what is factorial ANOVA and what is the main assumptions of ANOVA. And in two-way ANOVA also we would learn some terminology, suppose that what is main effect and interaction effect and when should be used ANOVA and how one-way ANOVA is differ from two-way ANOVA. So today in this video we would learn the detailed concept of ANOVA. Actually, ANOVA stands for analysis of variance. It is a statistical test that was developed by Ronald Fisher in 1918, and it simply tells us if there are any statistical differences between the means of three or more independent variables. Basically, this is talking about one-way ANOVA. So the टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर अनोवा इज रिफर एफ स्टेटिस्टिक, यानी अनोवा टेस्ट को एफ स्टेटिस्टिक कहते हैं, एंड इट इज एसेंशियली अ रेशियो ऑफ बिटवीन ग्रुप वेरिएशन एंड विद इन ग्रुप वेरिएशन. बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप वेरिएशन का जो रेशियो होता है, दिस इज द एफ स्टेटिस्टिक एंड इट इज द अनोवा. And further, in 1925, Ronald Fisher used the term two-way ANOVA in his book Statistical Methods for Research Workers, that is mentioned in chapter 7. In 2005, Andrew Gell-Mann proposed the concept of multi-level model, that is the different approach of ANOVA, जिसे बाद में मनोवा भी कहा गया. So, two-way ANOVA only purpose to assessing the main effect of each independent variable, but also if there is any interaction between them. In two-way ANOVA का जो मेन वर्क है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके मेन इफेक्ट का स्टडी करता है, प्लस यदि उनमें कोई इंटरेक्शन इफेक्ट भी हो तो उसका भी स्टडी करता है. आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट. तो देयर इज द two-way ANOVA, that is also called factorial ANOVA. कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल ANOVA एंड व्हाट इज टू-वे ANOVA. तो बोथ आर सेम थिंग्स. two-way ANOVA is called factorial ANOVA. So the two-way ANOVA test is a statistical test used to determine the effect of two variables on an outcome on DV. तो मीन्स two-way ANOVA एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है, वहाँ उपयोग होता है बेसिकली. तो two-way ANOVA is a statistical test that is used to find the effect of multiple level of two independent variable on a response variable that the interaction effect if any between two same things. यानी जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और उसके मोर देन टू लेबल्स रहते हैं, तो उन दोनों लेबल्स एंड प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अदर्स का इफेक्ट हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल पर देखते हैं. इट इज दी सिंपली two-way ANOVA. So the two-way ANOVA test is used in numerous industries, suppose as including agriculture, public health, commerce, medicine, pharmacy, and other social sciences discipline. It is used on a wide level. So the two-way ANOVA is an extension of one-way ANOVA test, although the latter it is more hypothetical one. And an ANOVA test determines whether a statistical operation has outcomes that are useful or not. In essence, it allows one to determine whether to reject or accept a null hypothesis. The two-way ANOVA test is similar to two-sample t-test but has a benefit of having lower chance of getting type 1 error. Basically, two-sample t-test के सिमिलर ही है, बट इसमें जो टाइप 1 एरर होते हैं उसके कम होने की चांसेस होते हैं. ये इसकी बेनिफिट है. व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इन सब का एक सेपरेट वीडियो में मैंने कवर कर रखा है. You can see there type 1 errors
which could corrupt the data collected, जो कि डेटा कलेक्शन के समय अकर होता है। तो द टू ANOVA is versatile and it can compare mean and variances within subject, between groups, within groups and even between the test group, यानी within group and between group के बीच की variances का टेस्ट करता है टू ANOVA। Now question here, what is difference between one ANOVA and two ANOVA? तो वन ANOVA is compared three or more level of वन फैक्टर्स इन द सेंस, जैसे कि हमने वन ANOVA की वीडियो में बताया था कि बेसिकली टी टेस्ट और वन ANOVA में यही डिफरेंस होता है। टी टेस्ट में जो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं उन दोनों की सिग्निफिकेंसी या कंपेयर करने की जांच के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, और जब हमारे पास मोर देन टू ग्रुप्स होते हैं इन दैट कंडीशन टी टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन देयर we use one ANOVA to test the hypothesis। तो जो हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं वहाँ हम लोग वन ANOVA यूज करते हैं। बट सम एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व टू फैक्टर्स ईच विद मल्टीपल लेवल, इन विच केस इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज टू ANOVा। बट कभी कभी हमारे पास ऐसा केस होता है कि मोर देन टू ग्रुप्स रहते हैं लेकिन उनके फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं मोर देन टू होते हैं, और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स भी मोर देन टू होते हैं। इन दैट कंडीशन वन ANOVा इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज देयर। उस कंडीशन में हम लोग टू ANOVा यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। सपोज दैट हियर गिवन द एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। एज इफ वी हैव मोर देन टू ग्रुप, यदि हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, सपोज दैट मेल, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर, देयर आर थ्री ग्रुप्स एंड आवर पर्पज इज टू नो द सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑन स्ट्रेस अमंग देम। हमें कोई स्ट्रेस का स्कोर है उसमें इन तीनों ग्रुप के बीच का डिफरेंस जानना है कि किसमें स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग वन ANOVा यूज करेंगे। हालांकि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ भी जाता है तो उसके बाद हम लोग पोस्ट हाक टेस्ट यूज करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस किन दो के बीच में है, क्योंकि जो ANOVा रिजल्ट देता है वन ANOVा ये सिर्फ ये बताता है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस एमंग द ग्रुप। जितने भी ग्रुप हैं इन सब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, किन दो के बीच में डिफरेंस है ये वन ANOVा नहीं बताता है। इसके लिए हम लोग पोस्ट हाक टेस्ट यूज करते हैं जिसका हमने अलग वीडियो बना रखा है। And if we have two or more than two groups and each group has two or more than two level, suppose that हमारे पास दो या दो से अधिक ग्रुप्स हैं और उनके दो या दो से अधिक लेवल भी हैं। सपोज दैट यहाँ सिर्फ मेल्स फीमेल ट्रांसजेंडर थे, इनमें डिफरेंस देखना था स्ट्रेस स्कोर पे। यहाँ पर मेल्स हैं, मेल्स की भी टू कैटेगरी या टू लेवल हैं, इनकी एज ग्रुप बिटवीन 20 to 30 and second level is age group between 30 to 40। सेम फीमेल्स हैं, फीमेल्स के भी टू ग्रुप्स हैं, एंड थर्ड इज ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके भी टू ग्रुप्स हैं। तो हियर आवर पर्पज इज टू नो द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्ट्रेस। जो स्ट्रेस स्कोर है उस पर इन सभी का 20, 30, 30, 40 मेल्स, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर, इन सभी का क्या इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं, इसकी जांच के लिए हम लोग टू ANOVा यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हेन टू यूज टू ANOVा। टू ANOVा हम लोग कब यूज करते हैं, हालांकि यहाँ भी मेंशन है बट एक बार फिर यहाँ थियरिटिकल कवर करते हैं। तो यू कैन यूज अ टू ANOVा when you have collected data on a quantitative dependent variable at multiple level of two categorical independent variable। होता है कि जब आपके पास कम से कम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके मोर देन टू लेवल हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज द कंटिन्यूस वेरिएबल हो, उस कंडीशन में लोग टू ANOVा यूज करते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट के लिए। एंड बोथ ऑफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कैटेगोरिकल। इसमें कंडीशंस है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए वो कैटेगरीज में होना चाहिए। सपोज दैट मेल,
एंड फीमेल्स हैं, ऐसे कैटेगरी में होनी चाहिए, प्लस उनके लेवल भी हो सकते हैं। And if one of your independent variable is categorical and one is quantitative or continuous, in that condition we have to use ANCOVA, मीन्स एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं, बस एक कैटेगोरिकल है और एक कॉन्टिन्यूअस या क्वांटिटेटिव है। इस कंडीशन में इंस्टीड ऑफ टू एनोवा यू हैव टू अप्लाई एनकोवा, दैट इज द डिफरेंट वर्जन ऑफ एनोवा। इसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बना रखे हैं, व्हाट इज द एनकोवा एंड मनोवा। एंड हाउ डज अनोवा टेस्ट वर्क, अनोवा कैसे वर्क करता है। Basically, ANOVA test using the F-test for statistical significance and F-test is group-wise comparison test. ये group-wise compare करता है F-test, which means it compare the variance in each group mean to the overall variance in the dependent variable. यानी प्रत्येक ग्रुप में जो वेरिएंस है उस मीन की ये टेस्ट करता है, प्लस ओवरऑल डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस होता है उसकी जांच करता है। And if the variance within group is smaller than variance between group, तो the F test will find a higher F value। ये एक कंडीशंस होती है मेला में, या एक हैपनिंग होती है जो मोस्टली आती है कि यदि द वेरिएंस विदिन ग्रुप इज स्मॉलर देन बिटवीन ग्रुप, जो विदिन ग्रुप का वेरिएंस है वो बिटवीन ग्रुप से अगर स्मॉल है तो एफ टेस्ट की जो वैल्यू होगी वो हायर होगी, एंड इन देयरफॉर द हायर लाइक्लीहुड दैट डिफरेंस ऑब्जर्व इज रियल नॉट ड्यू टू चांस। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी वो रियल होगी, ठीक है, मीन्स आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। ये एक बेसिकली अ टू वे अनोवा विद इंटरेक्शन टेस्ट थ्री नल हाइपोथेसिस एट द सेम टाइम। अनोवा जो टू वे अनोवा का यूज करते हैं तो उसमें कम से कम एक टू वे अनोवा में थ्री हाइपोथेसिस बनते हैं, दैट इज मेंशन हियर। फर्स्ट बनेगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स एट एनी लेवल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिकली इट इज द नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पहले ग्रुप का में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इट इज द मेन इफेक्ट, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हाइपोथेसिस, एंड इट इज अनदर इज सेकेंड variable का hypothesis that there is no significant difference in group mean at any level of second independent variable, it is also the main effect. And third would be interaction effect. Suppose that the effect of one independent variable does not depend on the effect of another independent variable, यानी एक independent variable का इफेक्ट दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं डिपेंड है, तो मीन्स देयर इज फाउंड नो इंटरेक्शन इफेक्ट, उन दोनों आई बी का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इट वाज थ्री नल हाइपोथेसिस दैट वी हैव टू फ्रेम इन टू वे अनोवा। दिस इज द मेन पॉइंट्स इन यूजिंग टू वे अनोवा। एजम्पशंस ऑफ टू वे अनोवा, टू वे अनोवा के कौन से एजम्पशंस होते हैं। जैसा कि हमने टी एंड वन वे अनोवा में बताया था कि जो टी के एजम्पशंस होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के, सेम एजम्पशंस अनोवा के भी होते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या क्या होता है। सम एजम्पशंस नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन वी कैरिंग आउट द टू वे अनोवा टेस्ट, ensuring that your data conform to these assumptions increases the quality of result। होता क्या है कि जब आप नॉर्मलिटी चेक करते हैं तो इससे आपकी जो डेटा होती है उस जो रिजल्ट होती है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है और एक रोबस्ट टेस्ट निकल के आता है। The two वे ANOVA makes all of the normal assumptions of parametric test of difference। ठीक है, जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट में जो भी डिफरेंस होते हैं, जो भी कंडीशन होते हैं, वो सब एजम्पशन टू वे अनोवा में अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशंस ऑफ टू वे अनोवा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीवी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका। इसमें द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल शुड फॉलो अ बेल कर्व, एंड इफ योर डेटा डजंट मीट दिस एजम्पशंस यू कैन ट्राई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो डेटा हो ये एनपीसी यानी बेल कर्व को फॉलो करना चाहिए। ये फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज ए टेक्निक टू मेक डेटा नॉर्मल यूज कर सकते हैं। सेकेंड
टाइप ऑफ एजम्पशन इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए ग्रुप्स के। तो द वेरिएंस अराउंड द मीन फॉर ईच ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड शुड बी सिमिलर अमंग ऑल ग्रुप्स, जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी जो वेरिएंस हो सिमिलर होनी चाहिए। एंड इफ योर डेटा does not mean this assumption, you may be able to use a non-parametric alternative like Kruskal-Wallis test। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को यदि आपका डेटा फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दोनों या दो से अधिक ग्रुप में इक्वल वेरिएंस नहीं है, तो इस कंडीशन में आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करोगे, जो कि टू बेनोवा का अल्टरनेटिव होता है क्रुस्कल-वालिस टेस्ट। इसका डिटेल हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है कि किस पैरामेट्रिक टेस्ट का कौन सा नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टेस्ट होता है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। थर्ड assumptions फॉर टू बेनोवा इज इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जो आपके जितने भी डेटा सैंपल्स हों उनका जो ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट हुआ वो इंडिपेंडेंस बेस पे होना चाहिए। द टू वेरिएबल फॉर टेस्टिंग शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन शुड नॉट कॉज और इफेक्ट द अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, एल्स इट कुड बी रिजल्ट इन स्क्यूनेस, अगर एक दूसरे पे डिपेंड है तो जो रिजल्ट है वो स्क्यू हो सकता है। सो दिस मीन दैट वन कैन नॉट यूज टू वे अनोवा टेस्ट इन सेटिंग अप कैटेगोरिकल वेरिएबल। जब आपका रिजल्ट स्क्यूनेस हो गया, इस कंडीशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल का टू वे अनोवा टेस्ट यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय गुड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हालांकि टू वे अनोवा यूज नहीं हो सकता, बट एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बन सकता है, फिर आपको उस तरफ जाना चाहिए। इन एडिशन योर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड रिप्रेजेंट यूनिक ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन शुड नॉट बी ग्रुप्ड विद इन लोकेशन और इंडिविजुअल सेम थिंग्स, कि आपका जो मेजरमेंट होना चाहिए डेटा का वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे पे लोकेटिव या किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए। एंड इफ योर डेटा डजंट मेक दिस assumptions, for that if your you set up experimental treatment within blocks, you can include a blocking variable and use the repeated measure ANOVA। यदि आप की जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में आप जो ब्लॉकिंग वेरिएबल को यूज करके रिपीटेड मेजर ANOVA यूज कर सकते हो। इट इज अनदर वर्जन ऑफ ANOVA, जो कि मोस्टली जैसे टी टेस्ट का प्री एंड पोस्ट डिजाइन होता था, तो वहाँ पेयर टी टेस्ट लगता था, सेम कंडीशंस में आके या उसमें भी लेबल्स होते हैं मोर देन डेटा में पेयर टेस्ट में, तो वहाँ रिपीटेड मेजर ANOVA यूज होता है, जो कि हमने एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है डिटेल्स पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेट में। देखो ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, अ ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर यूनिट और द सेम यूनिट मेजर्ड मल्टीपल टाइम। जब हम एक यूनिट को या उसके सिमिलर यूनिट को एक से अधिक बार मेजर करते हैं, रिपीटेड मेजर करते हैं, तो यहाँ ब्लॉक यूज होता है। एंड इट इज यूज टू रिड्यूस नॉन सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बाय कंपेयर लेवल ऑफ फैक्टर विद इन द ब्लॉक। ये बेसिकली एक से अधिक फैक्टर को के वेरिएशन को रिमूव करना होता है। Here is mentioned for example ANOVA टू ANOVA कैसे यूज करेंगे, कौन सी कैटेगरीज होगी किसे हम मेजर करना चाहते हैं, दैट्स ऑल मेंशन इन दिस एग्जांपल। तो सपोज वी वांट टू एक्सप्लोर हाउ अ डिटर्जेंट एंड अ पर्टिकुलर वाटर टेम्परेचर अफेक्ट द डर्ट रिमूवल इन लॉन्ड्री। किसी भी लॉन्ड्री का जो डर्ट है वो रिमूव करने के लिए जो डिटर्जेंट होता है और वाटर का टेम्परेचर लेवल होता है, ये दोनों कैसे इफेक्ट डालते हैं डर्ट रिमूव करने के लिए। एंड वी आल्सो वांट टू चेक इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड वाटर टेम्परेचर कैन अफेक्ट द डर्ट रिमूवल। हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि डिटर्जेंट एंड वाटर अलग अलग तो डर्ट रिमूव करते हैं कि नहीं, प्लस इन दोनों कंबाइंड इफेक्ट क्या डालते हैं डर्ट को रिमूव करने में। सो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ डिटर्जेंट नेमली एक्स एंड वाई। हमारे पास जो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिटर्जेंट, इसके दो लेवल हैं एक्स डिटर्जेंट एंड वाई डिटर्जेंट। एंड वी आल्सो यूज थ्री टाइप्स ऑफ वाटर टेम्परेचर, इट इज द अनदर सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा है ये सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज वाटर टेम्परेचर एंड द लेवल ऑफ विच आर कोल्ड वार्म एंड हॉट, जिसके तीन लेवल हैं
cold water, warm water and hot water. तो हियर द डिटर्जेंट एंड वाटर टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, सब इंडिपेंडेंट है। डिटर्जेंट अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाटर टेम्परेचर अलग है, बोथ आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर। while the amount of dirt removed that is the dependent variable। जो कितने अमाउंट में डर्ट रिमूव होता है जिसे मुझे मेजर करना है, बेसिकली हियर इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड तो वी आर यूजिंग अ 2-way ANOVA इंस्टेड ऑफ 1-way ANOVA बिकॉज वी हैव टू फैक्टर विद मल्टीपल लेवल इन हैंड। यहाँ 1-way ANOVA की जगह पे हम लोग 2-way ANOVA यूज कर सकते हो कि 1-way ANOVA नहीं यूज हो सकता क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल में है प्लस उनके लेवल हैं 2 से ज़्यादा, मल्टीपल लेवल है डिटर्जेंट एंड वाटर टेम्परेचर। So with each combination, one should wash 5 loaves, which shall be replicated. Suppose we record the information as the number denote the amount of dirt removed. हमें क्या करना है इस मेजरमेंट में, जो मेजर करना है इस एनालिसिस में, वो अमाउंट ऑफ डर्ट रिमूव, कितना अमाउंट में डर्ट रिमूव हुआ है ये मेजर करना है बाय अप्लाइंग द 2-way ANOVA टेस्ट। तो यहाँ जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो कुछ इस टाइप का बनेगा। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बनेगा, सेकंड नल हाइपोथेसिस सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बनेगा, एंड जो थर्ड नल हाइपोथेसिस बनेगी वो दोनों का कंबाइंड जॉइंट इफेक्ट का बनेगा। तो एज मेंशन हियर द टाइप ऑफ डिटर्जेंट दैट इज एक्स एंड वाई विल नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डर्ट, इट इज द फर्स्ट नल हाइपोथेसिस फॉर फर्स्ट आईवी, and the level of temperature as cold, warm and hot will not determine the amount of dirt removed. This is the second null hypothesis for second IV, and it is the interaction of first and second IV. Null hypothesis here, the combined effect of type of detergent and level of temperature will not determine the amount of dirt removed। दोनों के जो combined effect है इससे भी कोई dirt नहीं remove होगा। It is our third null hypothesis. So in this design, detergent has 2 levels and temperature has 3 levels. So in all there are 2 into 3, total 6 treatment would be conducted here. So with this layout we obtain score on amount of dirt removed from laundry belonging to 6 cell। यहाँ जो ट्रीटमेंट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो 6 बनेगा बिकॉज 2 into 3 डिटर्जेंट के 2 लेवल हैं एंड वाटर टेम्परेचर के 3 लेवल हैं, तो टोटल 6 ग्रुप या 6 सेल्स बनेंगे जो हम लोग इनका फैक्टर्स करेंगे। अब देयर आर मेंशन सब टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन 2-way ANOVA। हम लोग 2-way ANOVA यूज करते हैं तो वहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, देखते हैं क्या है डिटेल। फर्स्ट इज ब्लॉकिंग, क्योंकि हम लोगों ने भी पिछले कुछ पहले स्लाइड में पढ़ा था कि ब्लॉकिंग शब्द आया था। तो ब्लॉकिंग इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथड यूज्ड टू रिड्यूस कंफाउंडिंग। होता क्या है, ब्लॉकिंग एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जो कि कंफाउंडिंग को रिमूव करने के लिए यूज होता है टेक्निक से। ब्लॉकिंग इज सिमिलर टू पेयरिंग और मैचिंग मेथड एज पेयर द टी टेस्ट। ये जैसे पेयर टी टेस्ट में यूज होता था, ऐसे एक मैचिंग मेथड है ब्लॉकिंग, वेयर पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मैच्ड अप टू प्रिवेंट कंफाउंडिंग फैक्टर। यहाँ कुछ कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इफेक्ट डालते हैं। सपोज दैट एज एंड जेंडर है जिनका हम हिस्ट्री नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट डालेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग मैच करते हैं या ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक दैट इज यूज इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ब्लॉकिंग एक टेक्निक होता है, ब्लॉकिंग या मैचिंग, जो यूज होता है टू इंक्रीज द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो फ्रॉम हाइडिंग अ रियल डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स, जो हमारे जो 2 ग्रुप्स होते हैं वहाँ का जो रियल डिफरेंस है उसको एक्चुअली कंफाउंडिंग फैक्टर अफेक्ट डालते हैं उस पर। अब कंफाउंडिंग क्या होता है, बेसिकली कंफाउंडिंग मेक्स द कंक्लूजन ऑफ स्टडी डाउटफुल। जो कंफाउंडिंग होता है ये हमारी स्टडी को डाउटफुल बना देते हैं, उसकी जो रोबस्टनेस होता है उसे डिक्रीज करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए एक ब्लॉकिंग टेक्निक्स यूज की जाती है मोस्टली। तो रिपीटेड मेजर ANOVA में ब्लॉकिंग वर्ड्स काफ़ी यूज होता है। सेकेंड इज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन आता है। जब भी हम ANOVA कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ बिटवीन ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप
की बात होती है। तो व्हाट इज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन? इट शोज हाउ टू वन और मोर ग्रुप इज डिफरेंट और द टोटल वेरिएशन बिटवीन ईच ग्रुप मीन एंड ओवरऑल मीन्स। बिटवीन ग्रुप मीन जो दो ग्रुप नहीं है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। And within group variation it basically it measure how the individual vary from their group mean। अपने जो ये जो ग्रुप होता है एक ग्रुप है उसके अपने ग्रुप के भीतर का जो वेरिएशन है इट इज मेजर इन दी विद इन ग्रुप वेरिएशन। इसमें देखता है कि जो एक व्यक्ति है या हमारा एक केस है वो अपने ग्रुप मीन से कितना डिफरेंस है इट इज मेजर इन विद इन ग्रुप वेरिएशन। और इट शोज द डिफरेंसेस अमंग सब्जेक्ट हु आर इन द सेम ग्रुप और द टोटल वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू इन ईच ग्रुप एंड देयर ग्रुप मीन। यानी जो उसका ग्रुप का मीन होता है उससे जो एक केस है एक इंडिविजुअल वो कितना वेरी करता है। दिस इज द विद इन ग्रुप वेरिएशन। अब नाउ we have to learn what is main effect that is used in ANOVA. It is the basically effect of one independent variable on dependent variable and it ignoring the effect of other IB। जैसे टू बेनोवा में होता क्या है हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और उनके दो से ज़्यादा लेवल रहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था मेल हैं, मेल के दो लेवल हैं, उनका एज ग्रुप बिटवीन 20 to 30 एंड सेकेंड लेवल है एज ग्रुप 30 to 40 वाले हैं। तो इन दोनों का आपस में कैसा इंटरेक्टर का इफेक्ट डालते हैं डीबी पे, इसका इफेक्ट तो बेसिकली होता है मेन इफेक्ट में देखा जाता है। सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जैसे कि इनोवा में, तो एक अपना सेपरेटली प्रभाव क्या डालता है इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ अदर आईबी। अदर आईबी के इफेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, दोनों का अपना अलग अलग मेन इफेक्ट रहेगा। सेकेंड टर्म इज इंटरेक्शन इफेक्ट। इट इज अ जॉइंट साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल on at least 1 dB in which their joint effect is significantly greater than sum of the part। जब जो मेन इफेक्ट होता है वो सेपरेटली बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर डालते हैं, बस वही जो सेपरेटली ना होकर इंटरेक्शन करके इफेक्ट जो डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर इट इज बेसिकली इंटरेक्शन इफेक्ट एंड इट अकर्स व्हेन effect of one independent variable changes depending on the level of another independent variable। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब दूसरे पर डिपेंड होता है तो बेसिकली ये इंटरेक्शन इफेक्ट में ही होता है। सपोज दैट यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ अ रिसर्चर इज स्टडिंग हाउ जेंडर एज मेल एंड फीमेल एंड डाइटिंग डाइट ए एंड डाइट बी इन्फ्लुएंस वेट लॉस। कैसे जो जेंडर है मेल एंड फीमेल उनकी जो डाइट के टाइप्स हैं ये एंड बी, ठीक है, ये वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इट इज द केस ऑफ टू बेनोवा। तो एन इंटरेक्शन इफेक्ट वुड अकर इफ वुमेन यूजिंग डाइट ए लॉस्ट मोर वेट देन मैन यूजिंग डाइट ए। इंटरेक्शन इफेक्ट में जो उसका इंटरेक्शन इफेक्ट यहाँ आएगा वो ये आएगा कि जो वुमेन है डाइट ये मोर वेट लॉस करती हैं कंपेयर टू जो मैन है वो डाइट ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन हुआ डाइट ए मैन एंड डाइट ए वुमेन का, इन दोनों का सेपरेटली अपना इफेक्ट हुआ, एक दूसरे पे डिपेंडेंट डेटा था। हियर दिस इज बेसिकली इंटरेक्शन इफेक्ट, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके डिपेंडेंट वेरिएबल को अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। दिस इज द बेसिकली इंटरेक्शन इफेक्ट। So thank you. That's all. It was the some concept of ANOVA. And you, if you have any query or suggestion, so you can write in the comment